मान्य सभासदों, मान्य उपसभापति जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी. Now, calling attention to the matter of urgent public importance, Sri Dilip Kumar Turki to call the attention of the minister. थैंक यू सर. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी पर उड़ीसा के किसानों पर प्रभावित करने वाले बांध के निर्माण की और जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ. Okay, minister. तुरंत सभापटल पर रख दिया गया. Statement not issued. Statement to be issued. Oh, J.R.R. Ramesh doesn't know English, knows only Hindi. हिंदी मांग रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है. हाँ, जयराम जी की. Okay, minister. Minister, please start. Oh, you. विवरण सभापटल रख दिया गया. Eh? विवरण रख दिया गया सभापटल. Okay, fine. No, this. Yeah. Now you can, Turkey, you can ask clarification. थैंक यू सर. सर, महानदी हमारे उड़ीसा के लाइफलाइन है. Now, लगभग 15 Turkey, डिस्ट्रिक्ट, Mr. Turkey, Okay. 1 second. Mr. Minister, 2/3 पॉपुलेशन Turkey, इस महानदी. 1 second. Mr. Turkey, 1 second. Wait 1 second. Mr. Minister, you only supplied this statement just now, isn't it? Yes. You are only giving. So there is no time for the ministers, members to read. So better you read it. You read the statement. नहीं पूरे आप पढ़ दीजिए. Yeah, you Thank can. you, sir. Thank you, with your permission. The Read statement, the statement. yeah, it is already laid. So if you are, No, the point is, the statement is only given now to the minister, members. So members have not read it, they have to ask clarification. So better you read it. okay, sir, with your permission. Hindi or English, whichever Yeah, language you like. okay, sir. Yeah. Central Water Commission under Ministry of Water Resource, our river development and Ganga resolution carries out techno-economic appraisal of major and medium irrigation projects which are planned on inter-river basin. After techno-economic appraisal by the Central Water Commission, project is considered for acceptance by the advisory committee in this ministry. A project should be taken up only after techno-economic appraisal by CWC and acceptance by the advisory committee. Techno-economic appraisal approval of the minor irrigation project command area less than 2,000 hectares are carried out by concerned state government. 3 projects proposals, namely pre-feasibility report of Tendula Reservoir augmentation project and Sondu Reservoir project and detailed project report DPR of ARPA Bhesajhar Barrage project have been received by Central Water Commission. The project proposals are under appraisal by the CWC. The memorandum of agreement entered into between the state of Madhya Pradesh and Odisha on 20th/04/1983 inter alia provides for establishment of a joint control board to review the progress from time to time of survey, investigation, planning, execution and preparation of joint interstate irrigation and or power project, and to discuss and resolve any issue. However, the said board has not been constituted so far. An interstate meeting with the representatives of the states of Odisha and Chhattisgarh was scheduled on 27/06
2016 in CWC to discuss interstate issues concerning project in Mahanadi Basin. However, the same has been postponed at the request of the government of Odisha. A meeting under the chairmanship of Secretary Water Resource with Chief Secretaries of both the states has been scheduled on 29/07/2016 to consider various water resources issues projects in Mahanadi Basin. I think, sir, Honorable Chair, I think, sir, the statement itself is sufficient. Okay, fine. Thank you. Now, Mr. Turki. थैंक यू सर। महानदी हमारे उड़ीसा के एक लाइफलाइन है। लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट के 2/3 पॉपुलेशन इस महानदी के पानी के ऊपर निर्भर करते हैं। हीराकुद डैम, जो कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में माना जाता है, हीराकुद डैम का जो पानी लास्ट 10 सालों में नदी का जो इनफ्लो वाटर जो है 1/3 घट गया है। इससे हम चिंतित हैं। लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने महानदी के ऊपर लगभग 10 बड़ा बैरेज प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। 2-3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। महोदय, यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी चिंता की बात ये है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जब कंसल्ट किया, अभी कंप्लीट भी करने जा रहे हैं, कभी भी ओडिशा गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट नहीं किए, कभी इन्फॉर्म किया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ। ये काफ़ी हमारे लिए चिंतित और आपत्तिजनक बात है। महोदय, इससे हमारे उड़ीसा के लगभग 50% लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, 65% इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। इससे एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम होगा, इससे इरिगेशन, हमारे जो हजारों फिशरमैन हैं वो प्रभावित होंगे। इसके साथ ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम्स होगा और जो पानी का जो प्रवाह है वो भी कम हो जाएगा। इससे हमारे पावर जनरेशन में प्रॉब्लम होगा। तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है। महोदय, इस बारे में मैं मंत्री महोदय से कुछ पूछना चाहूँगा। पहली बात तो जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत अगर कोई अप स्ट्रीम स्टेट में पानी लेना चाहता है तो उससे डाउन स्ट्रीम स्टेट को इन्फॉर्म करना जरूरी समझते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट को क्या इन्फॉर्म किया था, कि नहीं किया था तो क्यों नहीं किया? सर, दूसरा सवाल मैं करना चाहूँगा, अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जितना भी प्रोजेक्ट महानदी के ऊपर बना रहे हैं या बना चुके हैं, इन प्रोजेक्ट को लेकर क्या सेंट्रल वाटर कमीशन का अनुमति लिए हैं? नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए हैं? लेकिन दुख की बात, हमारे लिए आश्चर्यजनक बात ये है कि सेंट्रल वाटर कमीशन सब कुछ जानते हुए भी क्यों चुप बैठी हुई है? महोदय, 1983 एग्रीमेंट के हिसाब से जब उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री जे.बी. पटनायक, उसके साथ हमें अर्जुन सिंह, थैंक यू सो मच, अर्जुन सिंह 1983 में मध्य प्रदेश के साथ एक एग्रीमेंट किए थे। एग्रीमेंट में जॉइंट कंट्रोल बोर्ड, जो कि जो भी फ्यूचर में महानदी के ऊपर डेवलपमेंट काम होगा तो उन्हीं के समझौता में होगा, उन्हीं का इंस्ट्रक्शन में होगा। लेकिन ये नियम भी नहीं माना गया, सीधा इसका भी ये नियम भी उल्लंघन किया गया। तो मैं जानना चाहूँगा कि यूनियन गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कार्रवाई करना जा रहे हैं और सेंट्रल वाटर कमीशन भी क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? महोदय, अब महानदी के लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है, काफ़ी डिस्प्यूट्स होने जा रहा है। तो इस मामले में भी मैं जानना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट आगे क्या कदम उठा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखे थे और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो लीगल प्रोजेक्ट है उसको तुरंत बंद किया जाए। हम भी यही चाहते हैं, हमारा भी यही डिमांड है कि जितने भी इलीगल प्रोजेक्ट अभी वहाँ पे
बना हुआ है या चल रहा है, जितना जल्द हो सके इसको बंद किया जाए। और एक मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नॉन मानसून के दौरान जो भी वाटर फ्लो होता है उसको भी इंश्योर करना चाहिए, उसको भी बंद ना किया जाए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ये कह रहा है कि वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट को लेके उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, इसके लिए उनको जो सेंट्रल वाटर कमीशन के पास परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। से महोदय ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने बना लिए हैं, जिसके कारण हमारे उड़ीसा के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जल्द से जल्द जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, चल रहा है, सबको तुरंत बंद किया जाए, तभी जाके हमारे उड़ीसा के लोग उपकृत हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। Okay. Thank you very much, Mr. Turkey. Now I have